شروع کرتا ہوں اسی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم جا رہے ہیں سیر کرنے چین۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ملے گی دلچسپ عجیب و غریب معلومات چائنا کے حوالے سے، جو کہ آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں چائنیز نیو ایئر کب منایا جاتا ہے؟ چینی شادیوں میں عجیب و غریب رسمیں کی جاتی ہیں۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، کیونکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء ضرور دیجئے گا۔ چینی قوم ایسی محنتی قوم ہے، یہ کبھی ہار نہیں مانتی۔ کوئی بھی ایسا کام جو کوئی نہ کر سکتا ہو وہ چینی ماہرین کر کے دکھاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص غریب پیدا ہوا ہو اور وہ اسی حالت میں مر گیا، یہ اس شخص کا قصور ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو عقل و شعور اسی لیے دیا ہے کہ وہ محنت کر کے ایک اچھا اپنا مستقبل بنا سکے۔ چین کا مکمل نام ریپبلک آف چائنا ہے۔ چین رقبے کے لحاظ سے پوری دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے اور چین کا رقبہ 95,72,900 مربع کلومیٹر ہے، اور رقبے کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر رشیا ہے اور تیسرے نمبر پر کینیڈا ہے۔ چین کی آبادی اس وقت 1,40,95,18,500 افراد پر مشتمل ہے۔ چین میں پیدائش کی شرح 0.4% ہے۔ چین میں تعلیم 6 سال کی عمر میں شروع ہوتی ہے۔ شرح روزگار 5% ہے۔ چین میں ٹریفک دائیں جانب چلتی ہے اور بین الاقوامی کالنگ کوڈ +86 ہے۔ دارالحکومت بیجنگ اور سرکاری زبان چینی ہے۔ بلند مقام ماؤنٹ ایورسٹ، جس کی اونچائی 8,848 میٹر ہے اور شنگھائی چین کا مقبول ترین شہر ہے۔ چین میں زیادہ کام کرنے کی وجہ سے سالانہ تقریباً 6 لاکھ سے زائد افراد ڈپریشن کی وجہ سے یا تو ان کی موت واقع ہو جاتی ہے یا تو وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ چین میں نئے سال کے موقع پر لاکھوں بلیوں کو ابدی نیند سلا دی جاتی ہے۔ چین میں سب سے زیادہ کتے کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ چین میں آج سے تقریباً 300 سال پہلے کتے کا گوشت کھانا شروع ہوا اور یہی ان کی مرغوب غذا ہے۔ چین 1949 عیسوی میں آزاد ہوا۔ پاکستان نے سب سے پہلے چین کو تسلیم کیا۔ ہوائی یاترا اور بینکاری کا نظام بھی چین کو پاکستان نے دیا۔ آج آپ خود دیکھ سکتے ہیں PIA اور پاکستان کہاں اور چین کہاں۔ چین کا جھنڈا سرخ رنگ کا ہے، اس میں ایک پیلے رنگ کا ستارہ اور 4 چھوٹے چھوٹے ستارے موجود ہیں جو کہ انقلاب کی ضمانت دیتے ہیں۔ چین کی سرحدیں 15 ممالک سے ملتی ہیں: افغانستان، بھوٹان، بھارت، قازقستان، لاؤس، منگولیا، نیپال، نارتھ کوریا، تاجکستان، برما، ویتنام، قازقستان اور روس شامل ہے۔ چین میں 9 کے لفظ کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ چین میں 262 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں۔ چینی قومی زبان ہے۔ کل آبادی کا تقریباً 70% لوگ چینی زبان بولتے ہیں۔ چین کی شہریت حاصل کرنا بہت مشکل ہے، اس کے لیے ماں یا باپ ان دونوں میں سے کسی ایک کا چائنی ہونا ضروری ہے۔ چین میں دوہری شہریت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ریل گاڑیوں کا جدید ترین سسٹم بھی چین کے پاس موجود ہے۔ ہر 10 سیکنڈ کے بعد ٹرین گزرتی ہے۔ چینی کھیلوں میں مارشل آرٹ کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ 22.3% آبادی جنگلات میں رہتی ہے۔ چین میں ہر 2000 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر اور ایک بیڈ موجود ہے۔ ملک میں تعلیم کی شرح 76% ہے۔ چین میں افراد کی اوسطاً عمر 75 سال ہے۔ چین کا سب سے امیر گاؤں اوراکی ہے، جہاں ہر شخص کروڑپتی ہے۔ بلوبا چین کا قومی درخت ہے۔ ریڈ کورن کرین چین کا قومی پرندہ ہے۔ بلیم بلاسم چین کا قومی پھول ہے اور قومی جانور پانڈا ہے۔ چین کا پاکستان سے فاصلہ 3283 کلومیٹر ہے۔ چین میں آبادی کی شرح کم ہونے کی وجہ سے ہر شادی شدہ جوڑے کو صرف ایک بچہ پیدا کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ چین میں ایک جہالت ابھی بھی پائی جاتی ہے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، جس کا خاتمہ آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے تھے۔ چین میں 10 لاکھ سے زائد لڑکے ایسے ہیں جو کنوارے ہیں، ان کی شادی کے لیے لڑکیاں موجود نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے چائنی دیگر ممالک میں جا کر شادیاں کرتے
जाते हैं। चीन की तारीख में इतना सीमेंट इस्तेमाल नहीं किया गया जितना 2011 से 2014 के दरमियान किया गया है। चीन में जिस शख्स की उम्र 10 साल से ऊपर हो जाती है, इसके लिए ज़रूरी है कि वो साल में 3 या 4 पौधे लगाए। चीन में सालाना 10 करोड़ से ज़ायद चॉपस्टिक्स इस्तेमाल होती हैं, जिसके लिए हज़ारों दरख्तों को काट दिया जाता है। दुनिया में सबसे बड़ी फौज चीन के पास मौजूद है। चीनी हुकूमत जो सालाना बजट फौज के लिए पेश करती है, इतना बड़ा बजट किसी भी मुल्क ने आज तक अपनी फौज के लिए नहीं रखा। चीन में सोशल नेटवर्किंग फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब 2009 में बैन किए गए। जब फेसबुक बैन की गई 2009 में, तो एकदम 10 लाख चाइनीज यूजर्स के अकाउंट फेसबुक से बंद कर दिए गए। इसकी वजह यह है कि चाइनीज नहीं चाहते कि अंदर की बात बाहर जाए। चीन की तारीख का सबसे बड़ा ज़लज़ला 1956 में आया। शंघाई शहर में 9 लाख से ज़ायद अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। चीन में 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं। एक्सपोर्ट के लिहाज से चीन पहले नंबर पर है और इंपोर्ट के लिहाज से चीन 5वें नंबर पर है। चीन में अपना हम शक्ल ढूंढना अमीर लोगों की फितरत रही है। अगर वो अपने हम शक्ल को ढूंढ लें तो उस पर वो तकरीबन अपनी 45% दौलत वक्फ करते हैं। चीन में एक ऐसा कानून भी है, ये कानून इस्लामी ममालिक में होना चाहिए, मगर ये कानून सिर्फ चाइना में है। चाइना में हर शख्स पर लाजम है कि वो दिन में एक दफ़ा अपने वालिदैन से ज़रूर मिले, जब वालिदैन की उम्र 60 साल से ऊपर हो जाती है। तामीराती काम में चीन टॉप पर है। हर 15 दिन में एक बिल्डिंग मुकम्मल होती है। 3 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो गारों में रहते हैं। चीन में एक कानून ऐसा भी है, करप्शन के केस में जिन अफराद को फांसी हो जाती है, फांसी वाले दिन पार्लियामेंट के मेंबरान, वजीर खारजा और वजीर आज़म को भी इस मौके पर बुलाया जाता है कि वो ये देखें। बेसिकली उनका मकसद यही है कि अगर करप्शन करोगे तो उसका अंजाम ये होगा। चाइनी लोग जिस जगह भी जाते हैं चाइनी में बात करते हैं। अंग्रेजी ज़बान का तसव्वुर बहुत कम है। चीन में आपको सामान की हर तरह की क्वालिटी मिलेगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कॉपी लेंगे, ओरिजिनल लेंगे, ए कॉपी लेंगे, बी लेंगे या सी लेंगे। टॉयलेट पेपर सबसे पहले चीन ने ईजाद किया। टॉयलेट पेपर का सबसे पहले इस्तेमाल शाही खानदान में हुआ। हमारे यहाँ काले रंग को सोग की इलामत समझा जाता है या किसी जुलूस या रैली के लिए काले कलर का इंतखाब किया जाता है, मगर चीन में ऐसे कामों के लिए सफ़ेद रंग इस्तेमाल किया जाता है। चीन दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। ख्वावे मोबाइल कंपनी सालाना $95 करोड़ कमाती है। 14,500 किलोमीटर साहिल समुंदर भी है। शंघाई टावर चीन की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। बुर्ज खलीफा के बाद दूसरे नंबर पर है। शंघाई टावर की ऊंचाई 632 मीटर यानी कि 2073 फीट है। इसकी 128 मंजिलें हैं और जदीद तरीन लिफ्ट्स भी मौजूद है जो कि 60 फीट फी सेकंड के हिसाब से चलती है। मशहूर शॉपिंग साइट्स अली एक्सप्रेस, अलीबाबा, फेडेक्स और मशहूर ज़माना टिकटॉक भी चाइना की मलकियत है। चीन में लड़के और लड़कियां अमीर होने के लिए नाखून बढ़ाते थे। उनका ये मानना था कि नाखून बड़े होने से दौलत आती है। सबसे बड़े पार्लियामेंट मेंबरान की तादाद चीन के पास है, जिनका इंतखाब वो हर इलाके और हर गांव से करते हैं। दुनिया का सबसे लंबा पुल चीन के पास मौजूद है। इसकी लंबाई 1,64,800 मीटर है और सबसे बड़ा दरिया भी चीन में मौजूद है। फोतियान सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। आइसक्रीम भी चाइना की ईजाद है। दुनिया के हर मज़हब में इबादत के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, चाहे वो तस्बीह हो, बुत हों या फिर सलीबे हों, सब पर मेड इन चाइना लिखा हुआ होता है। पतंग भी चीन की ईजाद है। इसका इस्तेमाल वो जंगों में करते थे। पतंग के ज़रिए दुश्मन को मैसेज पहुंचाया जाता था। डोरियान फल चाइना में मशहूर तरीन फल है। चीन में सुर्ख रंग को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। शादी ब्याह और सालगिरह के मौके पर जो गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं वो भी सुर्ख कलर के डब्बों में या फिर सुर्ख पैकिंग में दिए जाते हैं। चीन में इंसानों के अलावा जानवरों और परिंदों को भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिनमें बंदर, कबूतर,
और तोते शामिल हैं। चाइनीज माहिरीन का ये कहना है कि जंग के दौरान अगर टेक्नोलॉजी साथ न दे तो इस तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है। चीन में शादी के दौरान जब रुखसती होती है, रुखसती के वक्त दूल्हा दुल्हन को लेकर उठाकर भाग जाता है। चीन में शादी ब्याह की तकरीबात पर लाखों डॉलर खर्च कर दिए जाते हैं, मगर चीन में कुछ घराने ऐसे भी मौजूद हैं जो सादगी के साथ शादी करते हैं। बस दूल्हा साइकिल पर आता है और दुल्हन को लेकर चला जाता है। चीन में अगर कोई अमीर शख्स कोई जुर्म करता है तो वो अपनी जगह किसी अपने रिश्तेदार को भी अपनी जगह सजा दिलवा सकता है, बस उसको कुछ पैसे खर्च करना पड़ते हैं। दीवार चीन 2000 साल कबल मसीह में शुरू हुई और दीवार चीन की लंबाई 8800 किलोमीटर है और इसकी तामीर में 3000 से ज़ायद मजदूर अपनी जान से हाथ धो बैठे और उनको इसी जगह दफन कर दिया गया। रेशम के कपड़े बनाने का रवाज भी 3000 साल पहले चीन ने शुरू किया और वो इस बात को पूरी दुनिया से छुपाते रहे कि रेशम कैसे हासिल की जाती है। इम्तहानात में नकल करता हुए पकड़ा जाए तो उसको 10 साल सजा और कई $100 जुर्माना भी देना पड़ता है। चीन में 52% लोग ऐसे हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते। चीन के सनती कारोबार में मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, बच्चों के खिलौने और गाड़ियों के इंजन वगैरह तैयार किए जाते हैं। चीन में हर मजहब को आज़ादी हासिल है। चीन का नया साल फरवरी में शुरू होता है जो कि मौसम बहार में शुरू होता है। ये त्यौहार 8 फरवरी से शुरू होकर 16 दिनों के करीब ख़त्म हो जाता है। नए साल की शाम को घरों को खूबसूरत लाइटों के साथ सजा दिया जाता है। सभी लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, दावतें उड़ाते हैं, एक दूसरे को तोहफे भी देते हैं। जो अफराद एक दूसरे से नाराज होते हैं उनको आपस में राजी करवाया जाता है। सभी मिल बैठ के खाना खाते हैं और अब्बाओ अजदाद जो दुनिया से चले गए होते हैं उनके लिए दुआएं भी की जाती हैं और इस तरह अच्छी दुआओं और बेस्ट विशेस के साथ नया साल शुरू होता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी दोस्तों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।